آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ رمضان اور غزوہ بدر۔ غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی سب سے پہلی معرکۃ الآراء جنگ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے لڑی تھی، اور جس میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ بہت ہی واضح طور پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی اور کفار کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ یہ اتنی واضح طور پر فتح تھی اور کفار کی اتنی شکست فاش تھی کہ مکہ کے لوگوں کو اس کا اقرار کرنا اور یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور کیوں نہ ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ لوگ، چاہے مدینہ کے وہ مسلمان ہوں، چاہے آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے ہوں، سب سے افضل لوگ شریک ہوئے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے آپ انہیں اپنے میں کیسا پاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ سب سے افضل ہے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اسی طرح سے وہ فرشتے بھی جو اس دن بدر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 کی تعداد میں آسمان سے اترے تھے، وہ فرشتے بھی سب سے افضل۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے ان سے جنت واجب کر دی ہے اور انہیں بخش دیا ہے، آج کے بعد چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ یہ بدر کے مسلمانوں کی، بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر ہی انہیں یہ خوشخبری دے دی گئی کہ تم جنتی ہو، چاہے آج کے بعد کچھ بھی کرو، دنیا کے اندر جو قانون ہے، جو حدود ہے، وہ تو تم پر نافذ ہوں گے، لیکن آخرت میں تمہیں ان گناہوں کے بارے میں بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ مقام مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ جنگ تھی، اور یہ جنگ رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو واقع ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ خطبہ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے کہ اس سے کچھ نصیحتیں ہم حاصل کریں۔ میرے بھائیو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا تنہا کھڑے ہو کر، اور پھر آپ کی مخالفت کی گئی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ساتھی بھی بنتے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کو بھی ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس قدر ستایا گیا، اس قدر تنگ کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے، پھر یہاں تک کہ حالات اتنے دگرگوں ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کو بھی مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں پناہ لینی پڑی اور مدینہ آ گئے۔ لیکن مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ کو ایک قرار کی جگہ تو مل گئی، ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لیے جگہ تو مل گئی، اور آپ وہاں بڑے امن و اطمینان کے ساتھ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کا اور مدینہ کے رہنے والے انصار مسلمانوں کا بھائی چارہ کرانے لگے، انہیں آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم اور درس دینے لگے۔ وہیں آس پاس کے جو دوسرے مذہب کے یہودی قبائل آباد تھے، ان سے بھی آپ نے امن و آشتی کا معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، آپ اپنے مذہب پہ عمل کریں گے، اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ اور گویا کہ مدینہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہا، لیکن مکہ کے مشرکین کو یہ پسند نہیں تھا۔ وہ مدینہ کے اندر بھی مسلمانوں کو چین سے رہنا نہیں دینا چاہتے تھے،
اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کی مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے لوگ جو اوس و خزرج کے نام سے دو قبیلے آباد تھے، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ایک تاج بھی موتیوں کا تیار کیا تھا، لیکن اسی بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور اس کی بادشاہی دھری رہ گئی، تو وہ اسلام تو قبول نہیں کیا اور اندر سے جل بھن گیا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ مکہ کے کافروں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن ابی بن سلول سے خط و کتابت کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دینے کا اسے مشورہ دیا۔ جس طرح سے جو مسلمان جب حبشہ گئے تھے تو یہی مکہ والے حبشہ پہنچ کر کے حبشہ کے بادشاہ اشہم نجاشی کو بھی انہوں نے ہدیہ اور تحائف دے کر کے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کو نکال دو، لیکن وہاں بھی ان کی دال نہیں گلی تھی اور بادشاہ نے بڑی حقارت سے انہیں ٹھکرا دیا تھا، ان کی تحفے اور تحائف واپس کر دیے تھے۔ ویسے ہی اس عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی چال چلنی چاہی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چال کو ناکام کر دیا اور مدینہ کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ مکہ والے جتنا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم آپس میں لڑ بھیڑ کر کے اس سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہو۔ اور پھر مکہ والوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم مدینہ میں آ کر کے چین سے رہ سکیں گے، ہم ان کے گھروں میں داخل ہو کر آ کر وہاں ان کو ماریں گے اور ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ رات کو چین سے سو نہیں پاتے تھے، آپ کے دروازے پر کوئی نہ کوئی پہرا دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک واللہ یعصمک من الناس، آپ کے اوپر جو رسالت نازل کی گئی آپ اسے پہنچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے دار کو ہٹا دیا، لیکن خطرہ یہاں باقی تھا اور مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ہم کب تک دب کر رہیں گے، کب تک ہم اس طرح سے ڈر سے بھاگتے رہیں گے ان سے، ہمیں بھی ان سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ آخر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 39 نازل فرمائی اور اجازت دے دی، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں سے جنگ کی جاتی ہے انہیں اجازت دی گئی کہ وہ بھی جنگ کرے کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ آپ اپنی دفاع کر سکتے ہیں، آپ بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس طرح سے مدینہ کے قریب آباد ہونے والے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر سے معاہدہ کر لیا تھا، ایسے ہی مدینہ کے آس پاس اور دیگر جو مشرکین کے قبائل آباد تھے ان کے پاس بھی اللہ کے وسلم نے جا کر کے آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ مکہ کے لوگ جو دھمکیاں دے رہے تھے اب تک، اب ان کا راستہ روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا لشکر جو آپ نے بھیجا وہ 30 مہاجرین پر مشتمل ایک لشکر تھا جس کی عمارت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور جن کا جھنڈا سفید تھا، جو قریش کے ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے جن کی سرداری خود ابو جہل کر رہا تھا، جو 300 لوگوں کو لے کر کے تجارت کے لیے وہ لوگ مکہ سے شام جایا کرتے تھے اور مکہ سے شام جب جاتے تھے تو مدینہ کے قریب تو انہیں گزرنا پڑتا تھا، تو مسلمانوں نے ان کے قافلے کو روکنا شروع کر دیا، آتے جاتے ان کا پیچھا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو اب خطرے کا احساس ہونے لگا کہ ہم نے ان سے دشمنی مول لے کر کے اچھا نہیں کیا ہے، لیکن وہ اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اکڑ میں بھرے ہوئے تھے،
انہوں نے سوچا کہ یہ ہمیں آسان سمجھتے ہیں اور ہم انہیں وقت آنے پر دکھا دیں گے کہ ہم اتنا آسان نہیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اپنے ہمت و جرأت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، کیونکہ ہر طرح سے کچلے ہوئے تھے، دبائے ہوئے تھے، اور انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اجازت دی گئی تھی، یہ موقع ملا تھا. تو انہوں نے مکہ کے قریب تک جا کر کے ان کا پیچھا کیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک لشکر جو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں آپ نے بھیجا تھا، جسے سریہ نخلا کہا جاتا ہے. یہ بالکل حرم کے قریب واقع ہو کر کے قریش کے قافلے کا انہوں نے پیچھا کیا، اور چونکہ حرمت والا مہینہ چل رہا تھا، اور اگر یہ انہیں حرمت والے مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کرتے تو مکہ کے لوگ حرم میں داخل ہو جاتے، حدود حرم میں داخل ہو جاتے. انہوں نے سوچا اب ہم کیا کریں، کیا حرمت والے مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کریں یا پھر ان کے اوپر حملہ کر دیں. تو انہوں نے سوچا اگر ہم انتظار کریں گے تو یہ لوگ بچ کر نکل جائیں گے، حرم میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہاں ہم ان سے جنگ نہیں کر سکیں گے. تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے حملہ کر دیا، اور ان کے ایک آدمی کو عمر جوشی کو انہوں نے قتل کر دیا. تو اس طرح سے مکہ کے لوگوں نے اس پر بڑا واویلا مچایا کہ یہ دیکھو، یہ تو حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھتے. اللہ رب العالمین نے خیر اس کے بارے میں انہیں جواب دیا. قرآن کریم کے اندر آیتیں موجود ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس سے کہیں بڑا ہے. ان سے اگر غلطی میں ایک گناہ ہو گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر انہوں نے قتال کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی برات کا اظہار کیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. پھر جو شخص ان کا قتل کیا گیا تھا اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بھی ادا کی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک بار اور مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ بچ کر نکل گیا. دوبارہ جب ملک شام سے لوٹ کر کے وہ لوگ آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. آپ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لگا رکھا تھا کہ جاسوسی کرتے رہتے تھے اور پتہ لگاتے رہتے تھے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو ایسے ہی ایک موقع پر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان قافلہ لے کر کے ملک شام سے تجارت کر کے مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور ان پتہ لگایا کہ ان کے پاس تقریباً 262 کلو سونے کی مالیت کا مال ہے. 262 کلو سونے کی قیمت کا مال ان کے اونٹوں پر لدے ہوئے ہیں، اور تقریباً 1000 اونٹ ہیں. 100 اونٹوں پر یا 1000 اونٹوں پر غالباً لدے ہوئے تھے، اور حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اعلان کر دیا کہ لوگوں نکلو، یہ دیکھو ابو سفیان کا قافلہ مال تجارت لے کر چلا رہا ہے، نکلو، اللہ رب العالمین شاید تمہیں اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے اور تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کر دے. مدینہ کے لوگ نکلے، لیکن یہ کوئی خاص جنگ کے لیے نکلنے والا اعلان نہیں تھا، اس لیے جو بھی نکل سکتا تھا نکلا، جو نہیں نکلا اللہ کے رسول نے اس پر کوئی زبردستی نہیں کی، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی چھوٹے چھوٹے سریے اللہ کے بھیج چکے تھے اور چھوٹی چھوٹی فوجیں لے کر نکل چکے تھے. صحابہ نے سوچا کہ ایسے یہ بھی ایک قافلہ ہے، کسی قافلے کے تعاقب میں نکلے ہیں، اس لیے جو کچھ تعداد نکلی تھی وہ 313 یا اسی طرح سے 314 یا 317 لوگ تھے، اور جس میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کل 70 اونٹ تھے جس پر باری باری 2-2 3-3 لوگ سوار ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی ایک اونٹ آیا تھا جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں باری باری سوار ہو رہے تھے. راستے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اترنے کی باری آئی، آپ اترنے لگے کہ میں اترتا ہوں، چلو تم سوار ہو، تو دونوں صحابہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں اللہ کے وسلم آپ سوار ہو جائیے،
आप सवार होकर चलिए, आपके बदले में हम दोनों बारी बारी पैदल चलेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अच्छा, तुम दोनों क्या मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, या मुझसे ज्यादा तुम लोग नेकी चाहते हो? ना तो मैं तुम लोगों से ज्यादा कमजोर हूं और ना ही मैं तुम लोगों से कम नेकी चाहने वाला हूं। इसलिए सबको बारी बारी सवार होना है। और अल्लाह की ने सबको बारी बारी सवार किया। फिर उसके बाद आधे रास्ते में जाकर के रौहा के मकाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को वापस कर दिया कि और कहा कि जाओ तुम मदीना की जिम्मेदारी संभालो। मदीना की जिम्मेदारी इससे पहले अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को देकर आए थे कि वो नमाज वगैरह लोगों को पढ़ाया करेंगे। लेकिन फिर रौहा के मकाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को भेज दिया। और इस तरह से आपके साथ में फिर अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले का पीछा तो किया, लेकिन अबू सुफियान भी पूरी होशियारी के साथ सफर कर रहे थे, जो उस वक्त तक कुफार के साथ अभी इस्लाम नहीं लाए थे। बाद में इस्लाम लाकर अच्छे मुसलमान हुए फतेह मक्का के मौके पर। तो अबू सुफियान ने लोग पता लगाया, उन्हें पता चला कि मदीना के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने रास्ता बदल करके मक्का निकलना चाहा, और दूसरा ये होशियारी की कि कबीले ग़िफ़ार के एक शख्स को मदीना भेज दिया कि तेज रफ्तारी के साथ मक्का जाओ। मक्का भेज दिया और कहा कि तेज रफ्तारी के साथ मक्का जाओ और मक्का में ऐलान कर दो कि तुम्हारे काफिले को मदद की जरूरत, वरना तुम्हारा काफिला लूट लिया जाएगा। तो एक शख्स तेजी के साथ, कबीले ग़िफ़ार का एक शख्स तेजी के साथ मक्का जाता है और मक्का में जाकर के ऐलान करता है कि लोगों मदद मदद, काफिला काफिला, देखो अबू सुफियान का काफिला मदीना के लोगों ने उस पर हमला कर दिया और मुझे नहीं उम्मीद है कि तुम लोग उसको पा सकोगे, तुम्हारे पहुंचने से पहले वो लूट लिया जा चुका होगा। ये सुनना था कि मक्का के अंदर एक आग लग गई और लोग गुस्से से भड़क उठे कि ये इतनी बड़ी जुर्रत, और उन्होंने कबीले मखज़ूम के एक शख्स को कत्ल कर दिया था सरिये नखला में। तो इनकी हिम्मतें बढ़ गई हैं। अब हम जाकर के उन्हें बताएंगे कि हम इतने आसान नहीं हैं। और अबू जहल ने मक्का के अंदर ऐलान कर दिया कि सबको निकलना है। पूरे मक्का से तकरीबन 1300 लोग अकड़ते हुए, गुरूर में भरे हुए मक्का से निकले। भाइयों थोड़ा आगे सरक जाएं, पीछे बहुत सारे भाई खड़े हैं। किसी का कांधा फांद कर आने की जरूरत नहीं है, बस जो लोग अपने सामने जगह पाते हैं आगे थोड़ा सरक जाए। और मक्का से अबू जहल 1300 का लश्कर लेकर के निकला, जिसमें 100 घोड़े थे और 600 जिरहें थी, और ऊंट बहुत बड़ी तादाद में थे। बहुत ज्यादा ऊंट लेकर निकले थे, यहाँ तक कि रास्ते में एक दिन में 9 ऊंट, एक दिन में 10 ऊंट वो लोग ज़बह करते थे रास्ते में अपने खाने के लिए, खुराक के लिए। और 9 बड़े बड़े सरदारों ने रास्ते के पूरे खर्चे का जिम्मा लिया था। जो नहीं आ सकता था वो अपने तरफ से किसी न किसी को भेज रहा था। अबू लहब वो नहीं आ सका इस गज़वे में, इस जंग में, तो उसने अपने एक कर्जदार को, जिसके ऊपर कुछ उसका कर्जा निकलता था, उसने कहा तुम मेरी तरफ से चले जाओ, मैं कर्जा तुम्हें माफ कर दूंगा। एक कबीला था, कबीले बनु आदी, वो नहीं आए थे, उसका कोई भी फर्क नहीं शरीक हुआ था, बाकी सब से सब निकले थे। लेकिन अबू जहल अभी मक्का से निकला ही था कि उसे दूसरा पैगाम मिला अबू सुफियान की तरफ से कि काफिला बच गया है, लिहाजा तुम वापस लौट जाओ। तो कुछ लोगों ने मशवरा किया कि वापस लौट जाना चाहिए, मगर अबू जहल अकड़ गया और उसने कहा कि नहीं, हम वापस नहीं लौटेंगे, हम बद्र तक जाएंगे। मदीना के करीब जो बद्र का मकाम है, बद्र के मकाम तक जाएंगे और वहां बद्र के कुएं के पास हम पड़ाव डालेंगे, वहां ऊंट ज़बह करेंगे, दावतें करेंगे, पार्टियां करेंगे और हमारे लिए लौंडियां गाएंगी, नाचेंगी, हम शराब पिएंगे और लोगों को हमारे आने की, हमारे इज्तिमा की खबर होगी और हमारी भाग बैठ जाएगी। लोगों में याद रखा जाएगा कि हमारे इस सफर को, हम ऐसे वापस नहीं लौट जाएंगे। खैर, उसने लोगों को लौटने से मना कर दिया, मगर उसी वक्त अखनस बिन शुरैक जो बनु ज़ोहरा के हलीफ थे और उस वक्त उनके सरदारी कर रहे थे, वो 300 लोगों को लेकर के वहीं से लौट गए। बाद में कबीले बनु ज़ोहरा के लोग अखनस बिन शुरैक के इस कारनामे की बड़ी तारीफ किया करते थे कि बहुत अच्छा किया जो उस दिन हमें वहां से लौटा लाए। अब अबू जहल अपने लश्कर से लेकर के आगे बढ़ा तो उसे एक खतरा और लाहिक हुआ।
उसने कहा कि बनु बिक्र से हमारी दुश्मनी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पीछे मक्का के लोग हमला करके नुकसान पहुंचाए। तो इब्लीस ने देखा कि ये लोग वापस लौट जाएंगे और मेरा मकसद पूरा नहीं होगा, तो इब्लीस सुराका बिन मालिक बिन जोशन की शक्ल में आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि चलो तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूं और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे पीछे बनु किराना के लोग कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। बनु बिक्र बनु किराना की एक साथ थी, तो उसने कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं जमानत देता हूं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम चलो। और इस तरह से उन्हें खींच करके लाया, यहाँ तक कि बद्र के करीब एक टीले के पास उन्हें ठहराया। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बराबर जासूसी कर रहे थे, अपने जासूसों को भेज करके और खुद भी सफर करके पता लगाते रहे कि क्या हालत है, क्या हालात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस काफिले के बारे में खबर मिली कि मक्का से 1000 का लश्कर मदीना पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा किया और जमा करके मशवरा किया कि क्या किया जाए, क्योंकि लोग पूरी तैयारी के साथ नहीं निकले थे, इस तैयारी के साथ निकले थे कि एक तिजारती काफिला जा रहा है, उसी का पीछा करना है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि मशवरा दो, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, उन्होंने अच्छी बात कही। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, उन्होंने भी अच्छी बात कही। मिक़दाद बिन असद रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनी इसराइल की तरह नहीं कहेंगे कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप और आपका रब जाकर के लड़ो और हम यहाँ बैठे हैं। नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि आप और आपका रब चले और हम भी आपके दाएं बाएं लड़ेंगे, यहाँ तक कि अगर आप हमें बरके ग़िमार तक लेकर जाएंगे, यानी मदीना अरब के आखिरी सरहद तक लेकर जाएंगे, तो हम वहां तक भी आपके पास जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों मुझे मशवरा दो। इनकी बात की भी तारीफ की, लेकिन अल्लाह ने अभी भी फरमाया मशवरा दो। अब जो अंसारी सरदार थे साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अब तक खामोश थे, और अंसार इसलिए खामोश थे कि हम तो आपके ऊपर ईमान लाए हैं, आपको हमने पनाह दी है और हम तो हर वक्त आपका साथ देंगे, ये सोच करके खामोश थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे थे लोगों मुझे मशवरा दो, तो वो समझ गए, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपका रुख हमारी तरफ है, आप हमारा मशवरा लेना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच रहे थे कि मदीना के लोगों ने जो मुझे अपने यहाँ पनाह दी है, जो मक्का से मुझे मदीना आने की दावत दी थी और बयात की थी उक़बा के मकाम पर, तो उस बयात में ये चीज शामिल थी कि मदीना के अंदर रहकर आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन ये मामला जो होने जा रहा है, ये तो मदीना के बाहर है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबा की राय जानना चाहते थे। तो उस मौके पर साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने खुतबा दिया और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरे अंसार की तरफ से आपको जवाब दे रहा हूं। हमारा जवाब यह है कि हम आप पर ईमान लाए, आपकी हमने तस्दीक की है, आप की मदद करने का हमने वादा किया है, जो कुछ भी आप लेकर आए हैं उस पर हम सच्चे दिल से ईमान लाए हैं और मरते दम तक उस पर कायम हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ मदीना के अंदर आपकी बात करेंगे, तो नहीं, आप जहां भी जाएं, जिससे चाहे ताल्लुक जोड़ें, जिससे चाहे ताल्लुक तोड़ें, जिससे आप ताल्लुक जोड़ेंगे हम भी जोड़ेंगे, जिससे आप तोड़ लेंगे हम भी तोड़ लेंगे। आप हमारे माल में से जो चाहे ले लें और जो चाहे आप छोड़ दें, जो आप हमारे माल में से ले लेंगे हम उसे अपने हक में बेहतर समझेंगे, उसके मुकाबले में जो आप छोड़ देंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखेंगे कि हम लड़ाई के मैदान में जमा मर्द हैं और हम इंशाअल्लाह अपना वो जौहर दिखाएंगे जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें हुक्म दे कि समंदर में कूद जाए तो हम समंदर में कूद जाएंगे। इस तरह से उन्होंने बातें की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा और आपने फरमाया कि चलो इंशाअल्लाह कल तुम्हें जाकर वहां दिखाया बदर के मकाम पर, कहा कि ये कल मुशरिकीन की यहाँ लाशें गिरेंगी और यहाँ इनके पिछाड़े जाने की जगहें होंगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर के बदर की तरफ बढ़े और बदर की तरफ बढ़ने लगे तो एक सहाबी ने उस मौके पर मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बदर के सबसे दूसरे किनारे पर जाकर के उनके करीब वाला जो कुआं है उस पर जाकर के पड़ाव डालना चाहिए और उस हौज पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि और बाकी के पीछे भी जो सारे कुएं उन्हें पानी देना चाहिए, ताकि हम लोग पानी पी पी करके उनसे जंग लड़ेंगे और वो प्यासे हालत में हमसे जंग लड़ेंगे, तो इस तरह से हमें मदद मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के एकदम दूसरे किनारे पर जाकर के आपने पड़ाव डाला
اور उस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से बारिश बरसाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बारिश का भी तज़किरा किया है कि ये बारिश ऐसे ही नहीं थी, बेमकसद नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसु अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान व लियरबिता अला क़ुलूबिकुम व युसब्बिता बिल अक़दाम। कि याद करो उस मौके को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर ऊँघ तारी कर रहा था। मैदान जंग में किसी के ऊपर ऊँघ आए तो ये अल्लाह की तरफ से इस तरह की रहमत की दलील है, ये अमन व इत्मीनान की दलील है कि अल्लाह की तरफ से अमन का नुज़ूल हो रहा है और सकीनत का नुज़ूल हो रहा है। इसी तरह से अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई ताकि उसके जरिए से उनके अंदर जो शैतानी ख्यालात है सबको अल्लाह ताला पाक कर दे, शैतान की गंदगी को पाक कर दे और इसके जरिए से उनके दिलों को जमा दे और उसके जरिए से अल्लाह ताला उनके कदमों को जमा दे। हुआ ये कि कुरैश का लश्कर जहाँ ठहरा हुआ था वहां की जमीन बराबर नहीं थी, वहां फिसलन थी, तो वहां जोरदार बारिश हुई और वो कीचड़ में हो गए। और जहां मुसलमान थे यहाँ रेतीली जमीन थी, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल्की फुहार की शक्ल में बारिश बरसाई जिससे इनके कदम और जम गए, रेत बैठ गई और ये नहा धोकर के पाक साफ भी हो गए। फिर मक्के का लश्कर वहां से जब निकला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसलमानों की सफों को जब दुरुस्त किया तो साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ख्याल है कि हम आपके लिए एक छप्पर बना देते हैं, मैदान से हट करके एक छप्पर बना देते हैं, आप वहां कयाम करें और आपके साथ एक छोटी सी फौज आपकी निगरानी के लिए मुकर्रर कर देते हैं कि आपकी निगरानी करेंगी। अगर हम लोग फतेह से हमकिनार हुए तो ये वो चीज होगी जो आपको पसंद है, लेकिन अगर कभी दूसरा मामला हुआ, हमें शिकस्त उठानी पड़ी, तो आप यहाँ से मदीना निकल जाएंगे, हम आपके लिए सवारी का इंतजाम करेंगे। अल्लाह की कसम मदीना के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं था कि ये वाक़या पेश आएगा, इसलिए वो पीछे रह गए हैं, वरना वो पीछे नहीं रहते थे और वो हमसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाले हैं और आपका साथ देने वाले हैं। इस तरह से साहबी ने मशवरा दिया, अल्लाह के वसल्लम ने एक छप्पर बनाया और वहां जाकर के रात भर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं की, इस कदर गिरा कर अल्लाह के सामने दुआएं मांगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िज़ ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंशुदुका अहदका व वअदका, ऐ अल्लाह जो तूने मुझसे वादा किया था आज उसे पूरा कर दे, ऐ अल्लाह मैं तुझे तेरा वादा याद दिलाता हूँ, तेरा अहद याद दिलाता हूँ। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिल असाबतुल यौम ला तुअबद, अल्लाहुम्मा इन शि'ता लम तुअबद बादिल यौम अबदा, ऐ अल्लाह अगर आज ये छोटी सी जमात अगर ये शिकस्त खा गई तो आज के बाद तेरी इबादत कभी नहीं की जाएगी। याद रखें मक्का के लश्कर का मकसद यही था कि मदीना के मुसलमानों पर अपनी धाक बिठा कर जाएंगे, और अगर ये आज यहाँ से बचकर चले जाते या उनकी धाक बैठ जाती तो मदीना के अंदर जो इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई थी उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती थी, फिर जो चाहता था उससे खेलता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सारी चीजें रखी और अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह का वादा याद दिलाया कि अल्लाह तूने मदद का वादा किया था तो आज मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे, इस कदर गिरा कर दुआ कर रहे थे कि आपके कंधे से चादर सरक गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो आपके पास मौजूद थे उन्होंने आपके कंधे पर चादर डाली, पीछे से आपसे लिपट गए और कहा कि अल्लाह के वसल्लम बस कीजिए, आपने अपने रब से बहुत दुआएं कर ली, अल्लाह ताला जरूर आपकी मदद करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को वही की, फरिश्तों का हुक्म भेजा, अन्नी माअकुम फसब्बितुल लदीना आमनू फसब्बितु कुलूबल लदीना आमनू फसब्बितुल लदीना आमनू सउल्की फी कुलूबिल लदीना कफरु रुअब। फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ मोमिनों के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिलों में रोब डाल दूंगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह ने वही की, अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फि मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 फरिश्तों के जरिए मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ जो आगे पीछे उतर रहे हैं आसमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक ऊँघ तारी हुई जो वही की कैफियत थी, उससे आप जब बेदार हुए आप उठे, आपने कहा कि खुश हो जाओ, देखो जिब्रील अमीन आ रहे हैं जो अपने घोड़े की लगाम पकड़े मेरे सामने आ रहे हैं, गर्दो गुबार में अटे हुए हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की। और आपने उस वक्त फरमाया कि सयुहज़मुल जमउ वयुवल्लून दुबुर, आज ये सारे लश्कर पीठ फेंकर भागेंगे और आज ये शिकस्त खा जाएंगे। उसके बाद आप अपने छप्पर से नीचे उतरे, आप ज़रा पहने हुए थे और ज़रा एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह होती है, तो अल्लाह के रसूल पहने हुए थे और आपने एक मुट्ठी कंकरी उठाई और कुफ्फार की तरफ फेंका, ये कह करके शाहतुल वुजूह, चेहरे बिगड़ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक कंकरी, एक मुट्ठी कंकरी को फैला करके कुफ्फार के सारे लोगों तक पहुंचा दी और सबके नाकों के अंदर वो कंकरी जाकर के लगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी बात का तज़किरा किया सूरह अनफाल के अंदर, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा,
اے نبी जब आपने कंकरी फेंकी थी उस वक्त आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फेंकी वो कंकरी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहुंचा दी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को तरतीब दी थी। बहुत सारे वाकयात पेश आए, वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए बहुत ही मुख्तसर तौर पर चंद वाकयात आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर सहाबा किराम को जो हिदायत दी थी कि पहले हमला नहीं करना, पहले उन लोगों की तरफ से हमला होने दो, जब करीब आएंगे तब उन पर तीर बरसाना, जब बिल्कुल मिल जाएंगे तो उस वक्त तीर रख करके अपने नेज़ों को और तलवारों को निकालना। और सहाबा किराम के पास उस वक्त बहुत ज्यादा हथियार नहीं थे, बस किसी के पास तीर है तो कमान नहीं, किसी के पास कमान है तो तीर नहीं, किसी के पास नेजा है तो तलवार नहीं, किसी के पास तलवार है तो नेजा नहीं है। इस तरह से जो कुछ इसके पास था उससे उलट रहे थे, और मक्का के लोगों ने इस चीज को भांप लिया था कि इनके पास जो कुछ भी है सिर्फ इनके अपने हथियार ही हैं, और ये उस वक्त तक मैदान से नहीं हटेंगे जब तक कि किसी न किसी शख्स को मार देंगे। इसलिए मक्का के लोगों के ऊपर एक रोक भी तारी हो गया था। 1000 की तादाद में होने के बावजूद भी 313 से घबरा रहे थे। और हुआ यही कि जब वो लोग करीब आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को उभारा, शुद्ध दो चढ़ दौड़ो, और उसके बाद सहाबे किराम जो चढ़ दौड़े, जो गुस्सा गुस्सा हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को रग़बत दिलाते रहे कि लोगों आगे बढ़ते तो अल्लाह के रास्ते में लड़ेगा, जो शहादत की मौत पाएगा अल्लाह के यहाँ जन्नत का मुस्तहिक होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये कलिमात सुन सुनकर सहाबे किराम के अंदर जोश आ रहा था और आगे बढ़कर लड़ रहे थे। एक वाकया ये भी पेश आया कि एक सहाबी जिनका नाम उमर बिन हम्माम है, वो उस वक्त खजूरें निकाल करके खा रहे थे। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये कलमा जब सुना कि उसके लिए जन्नत है, तो उन्होंने कहा बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह के वसल्लम की मैं भी आज जन्नत में पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद अपनी खजूरें उन्होंने फेंक दी, कहा ये खजूरें खाऊंगा जब तक बहुत देर हो जाएगी जन्नत में पहुंचने में। खजूरें फेंक दी और तलवार निकाली और दुश्मनों में घुस गए और लड़ते हुए शहीद हो गए। इस तरह से एक से एक बड़ा वाकयात पेश आए। एक सहाबी उक्काशा बिन महसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तलवार से लड़ रहे थे, उनकी तलवार टूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी मेरी तलवार टूट गई है। आपने एक लकड़ी उठाकर उन्हें थमा दी और कहा जाओ इससे लड़ो। उन्होंने लकड़ी को हिलाया तो चमचमाती तलवार बन गई और उससे लड़ाई की, यहाँ तक कि उसके बाद भी जंगे यमामा तक उनके पास वो तलवार रही और जंगे यमामा में जाकर के शहीद हुए सहाबी। इस तरह से बहुत सारे उस वक्त करामात भी जाहिर हुई। अबू जहल का हश्र ये हुआ कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मैं जब सफों में खड़ा था, मैंने अपने दाएं बाएं निगाह डाली कि मेरे आसपास कौन है, तो देखा दाहिने तरफ एक नौजवान लड़का है, बाएं तरफ भी एक नौजवान लड़का है। तो मुझे अफसोस हुआ कि कोई मजबूत आदमी होता तो सहारा बनता, ये तो नौजवान लड़के हैं। तो उन्होंने ये ख्याल अपने दिल में भी लाया ही था, सोचा ही था कि एक लड़का दूसरे से बच करके पूछता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा जान अबू जहल कौन? तो उन्होंने कहा कि तो अबू जहल को क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हमने मदीना में सुन रखा है कि मक्का का कोई अबू जहल है जो हमारे नबी को गालियां देता था। अल्लाह की कसम आज मैंने ये इरादा कर लिया है कि अगर मैंने उसे देख लिया तो उससे मेरा वजूद अलग नहीं होगा जब तक कि हम दोनों में से कोई एक मर न जाए। कहते कि मैं सोच ही रहा था, इसके दूसरे लड़के ने भी वही बात मेरे कान में कही, चाचा जान अबू जहल कौन है? और मैंने जब दोनों की बातें सुनी तो उस वक्त मैंने देखा कि अबू जहल अपने लश्कर में घोड़े पर सवार चक्कर काट रहा है। तो मैंने कहा कि देखो वो तुम दोनों का शिकार है। वो दोनों मेरी जुबान से सुने कि फौरन अपनी तलवारें लेकर उसके ऊपर टूट पड़े और वो घेरा तोड़ते हुए उसके पास से पहुंच गए और दोनों ने उसके ऊपर हमला करके उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया और अबू जहल खाक और खून में तड़पने लगा। इतने में अबू जहल का बेटा इकरमा उसने एक सहाबी के हाथ पर जोर से वार किया, उनका हाथ कट गया और नीचे लटकने लगा। कहते हैं कि मैं एक हाथ लटक रहा था, एक हाथ से लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन जब वो हाथ मुझे तकलीफ देने लगा तो मैं अपने पैर के नीचे उस हाथ को मैंने दबाया और दबा करके खींच के अलग कर दिया और दूसरे हाथ से मैं लड़ाई करता रहा। इस तरह से सहाबा किराम ने बहादुरी के जौहर दिखाए, एक से एक बढ़कर उन्होंने वहां कारनामे दिखाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि किस तरह से मुशरिकीन के लश्कर में फूट पड़ गई और लोग भाग रहे हैं और सहाबा किराम उन्हें या तो उनका पीछा करके कत्ल कर रहे हैं या तो उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और उसी में फरिश्तों का भी नुज़ूल हुआ, फरिश्ते भी लड़ाई कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। सहाबी कहते हैं कि मैं किसी के ऊपर तलवार उठाता कि उसको कत्ल करूं, इसके देखता कि मेरे तलवार लगाने से पहले उसका सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता था। किसी को मैं दौड़ा रहा था लेकिन इससे पहले मैंने देखा उसके चेहरे पर कोड़े पड़ने की आवाज आई
और वो मुंह के बल गिरा। जब मैंने उसे पलट कर देखा तो उसके नाक के ऊपर कोड़े के पड़ने के निशान थे और उसका पूरा चेहरा हरा पड़ गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तीसरे आसमान के फरिश्ते थे जो तुम्हारी मदद कर रहे थे। एक सहाबी अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा से उन्हें बांध करके लेकर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे मैंने इन्हें गिरफ्तार किया, मैंने इन्हें बांधा है। उन्होंने कहा कि अब्बास ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने नहीं बल्कि मुझे एक गंदे सर के आदमी ने बांधा है जिन्हें मैं अभी नहीं देख रहा हूं। आपने फरमाया कि वो फरिश्ता था जो तुम्हारी मदद कर रहा था। इस तरह से उसमें ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए कि एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ बेटा है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने उनका बाप आता है लड़ाई के मैदान में और अपने बाप की गर्दन उड़ा देते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने उनका मामू आस बिन वाइल, उनका मामू सामने आता है और अपने मामू की गर्दन उड़ा देते हैं। इस तरह से अल्लाह के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के आगे किसी की मोहब्बत को उन्होंने खातिर में नहीं लाया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मकाम दिया सहाबे किराम को कि अल्लाह ने आसमान से झांका और कहा कि ऐ बदर में शरीक होने वाले सहाबा, आज के बाद तुम कुछ भी करो तुम्हारी कोई पकड़ नहीं होगी, तुम सबके सब जन्नती हो। ये सहाबे किराम का मकाम मर्तबा था मेरे भाइयों दोस्तों। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि 70 काफिर जिसमें बड़े बड़े सरदार भी उसमें कत्ल किए गए और 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कैदी बना करके मदीना ले जाया गया, जिन्हें बाद में फिदिया लेकर के छोड़ दिया गया। और सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए थे, जिसमें से 6 मुहाजिर थे और 8 अंसारी सहाबी थे। ये 14 लोग शहीद हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 14 सहाबा को वहीं दफनाया और मुशरिकीन की लाशों को एक खराब कुएं में डाल करके आप 3 दिन वहां ठहर करके फिर आप मदीना को वापस लौट गए थे। बहुत सारी इबरतें और नसीहत इसमें हमारे लिए है। वक्त नहीं है कि उन सबको तफसील के साथ बयान किया जाए, लेकिन ये सहाबे किराम के मकाम मर्तबे की झलक हमें दिखलाती हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से इत्तबा पैरवी करते थे सहाबा, इसका किस तरह से मोहब्बत करते थे, इसकी झलक हमें दिखलाती हैं। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मौके पर आप उनकी इबरतें और नसीहतें सुनते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बनाए, सहाबे किराम की अज़मत को समझने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, जब भी दुनिया से उठाए तो हालत ईमान पर उठाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रकुम व यज़िदकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।